નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? અગસ્ત્ય ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં ઓનલાઈન લેક્ચરમાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે। આજનો આપણો વિષય છે हिंदी और हिंदी में चैप्टर 4 और उनका जो 5वां भाग है। चौथा भाग भी हमने व्याकरण का देखा और 5वां भाग है वह भी व्याकरण का है। और व्याकरण में जो पुराना ही टॉपिक है प्रत्यय और उपसर्ग, जो आपको 8वीं कक्षा में आता था, लेकिन कोई न कोई वजह से किसी को भी यह प्रत्यय और उपसर्ग नहीं आता, तो इसलिए हम आज सिखाएंगे आपको उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहा जाता है और उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। कई तरह तरह के दृष्टांत भी दिए गए हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय वह 9वीं कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। तो आपको 10वीं कक्षा में शायद यह उपसर्ग और प्रत्यय नहीं आ सकता, लेकिन 9वीं कक्षा में यह महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान देकर इनका अध्ययन करना है, इनको पढ़ना है और याद रखना है, जिससे हम आगे आपको परीक्षा में भी यह उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे और टेस्ट लिए जाएंगे तो उनमें भी आएंगे, बराबर। और आपको यह बात भी हम बता दें कि आपके पास जो कुछ भी होमवर्क है वह आपने अच्छी तरह से रख दिए होंगे, तो वह आपके स्कूल जो ऑफलाइन प्रत्यक्ष शिक्षण, बराबर, जो गुजराती में बात करो तो प्रत्यक्ष शिक्षण तमाરું બુધવારે શરૂ થશે ત્યારે તમારું બધાનું હોમવર્ક છે તે ચેક કરવામાં આવશે। ત્યાર પછી એટલે તમે જે હોમવર્ક લખ્યું છે તે નોટબુક સાચવીને રાખજો અને આમાંથી કંઈ હોમવર્ક મળશે તો પણ આ બધું આવડે તો આ હોમવર્કમાં કરી શકો। બાકી પછી ઘણા છે તે ખોટું લખે છે ઉપસર્ગ, ઘણા એમ કે મને નથી આવડતું, પણ તો ધ્યાનથી અત્યારે જોજો એટલે તમને બધાને આવડી જાય, બરાબર છે। तो चले उपसर्ग, बराबर। तो हमारा जो चैप्टर का नाम था कर्ण का जीवन दर्शन, कर्ण दानवीर कर्ण के बारे में देखा और उनके प्रश्नोत्तरी और व्याकरण भी देखे। अब उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये शब्द है, देखिए यहाँ पे जो मैं दृष्टांत देता हूँ, यह कोई भी शब्द है, बराबर, और उनमें आगे कुछ नया शब्दांश जुड़कर एक नया शब्द बन जाता है, बराबर। तो क्या हुआ, जो आगे कुछ शब्दांश जुड़े हैं उनके पहले शब्द है, शब्द के पहले या आधा शब्द है उसके पहले कुछ शब्दांश जुड़ा तो उनको मिलने से पूरा शब्द बन गया, तो वह उपसर्ग बना। लेकिन इस तरह देखिए कि यह शब्द है, शब्द के पीछे कुछ नया शब्दांश जुड़कर जो शब्द का अर्थ परिवर्तन होता है तो वह प्रत्यय। એટલે કે કહેવાનો મતલબ એ કે શબ્દ છે એક સામાન્ય શબ્દ છે, બરાબર, પણ જેમ કે દેશ સામાન્ય શબ્દ છે, પરંતુ એમાં આગળ કંઈક જોડવામાં આવે, બરાબર, આ દેશ શબ્દ છે ને આગળ કંઈક શબ્દ ઉમેરવામાં આવે તો આખું પરિવર્તન થઈ જાય, એનો અર્થમાં પરિવર્તન થઈ જાય તો તે ઉપસર્ગ છે। પાછળ જોડવામાં કંઈક આવે, બરાબર, જેમ કે ઘડીક વાર પૂરતો આપણે જોઈએ કે આ દેશ, ગુજરાતીમાં સમજાવું એટલે તમને સમજાઈ જાય, દેશ શબ્દ છે, બરાબર, તો આ દેશ શબ્દ છે। હવે આની આગળ હું કંઈક જોડું, બરાબર, તો એ શું બનશે, તો એ ઉપસર્ગ બનશે। જેમ કે હું લખું વિદેશ, સ્વદેશ, આ દેશ તો હતું જ, બરાબર, દેશ તો છે જ, પણ દેશની આગળ હું સ્વ લગાડું તો સ્વદેશ એટલે પોતાનો દેશ, વિદેશ એટલે બીજો દેશ। તો આ દેશ શબ્દ છે સામાન્ય શબ્દ છે, પણ એમાં જે આગળ ઉમેર્યું તેને શું કહેવાય, પ્રત્યય। એટલે કે પ્રત્યય છૂટું પાડવાનો હોય તો વધારાનો શબ્દ છે એ આપણે અલગ કરી લેવાનો, બરાબર, તો એ પ્રત્યય બનશે, એ ઉપસર્ગ બનશે। અને આમ હોય કે દેશી, વિદેશી છે તો આપણે આમ કરી શકીએ વિદેશ વત્તા ઈ, તો ઈ પ્રત્યય લાવ્યો છે, બરાબર, તો આને શું કહેવાય, પ્રત્યય કહેવાય, અને આગળ હોય એને ઉપસર્ગ કહેવાય, બરાબર। આ વી છે ઉપસર્ગ છે ને આ ઈ છે તે પ્રત્યય છે। તો હવે તમને હું એમ માની લઉં કે તમને આવડી ગયું હશે, ન આવડ્યું હોય તો પાછું સમજાવું કે સામાન્ય શબ્દ હોય, બરાબર, પરંતુ એમાં આગળ કંઈ જોડવામાં આવે તો તે શું બનશે, તો સામાન્ય શબ્દની આગળ કાંઈ પણ જોડવામાં આવે તો એ બનશે ઉપસર્ગ, બરાબર। હવે સામાન્ય શબ્દ છે એની પાછળ જોડવામાં આવે તો શું બનશે, બોલો જોઈએ, સરસ, પ્રત્યય બનશે, બરાબર। તો આપણે જે ઉપસર્ગ અને પ્રત્યય જે 8મા ધોરણમાં પણ તમારે આવતું, પણ 8મા ધોરણમાં આપણે કોઈને કોઈ કારણથી એનો અભ્યાસ ન કરી શક્યા હોય એટલે આ 9મા ધોરણમાં
ધ્યાન રાખવાનું છે, કેમ કે મેં અગાઉ હોમવર્કમાં આપેલું હતું ત્યારે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને આ નહોતું આવડ્યું, બરાબર. તો હવે આવડી જવું છે. આગળવાળું ઉપસર્ગ, પાછળવાળું પ્રત્યય, આગળવાળું ઉપસર્ગ અને પાછળવાળું પ્રત્યય, બરાબર. તો આ દેશ શબ્દની વાત કરી કે દેશ શબ્દ છે, બરાબર, એમાં આગળ વી લગાડી દીધું. તો આ વી છે તે શું છે? તો એ ઉપસર્ગ પ્રત્યય છે, બરાબર. હવે અહીં ઈ પ્રત્યય લગાડ્યો, બરાબર, તો તે શું બન્યું? તો તે પ્રત્યય બન્યું, બરાબર. પાછળ લગાડીએ તો પ્રત્યય, આગળ લગાડીએ તો ઉપસર્ગ. તો આ વાત આપણે આજે અહીંયા અભ્યાસક્રમને અનુલક્ષીને કરવાની છે. એનું પ્રકરણ નંબર 4 છે, કર્ણકા જીવન દર્શન. એમાં આવતું આ ઉપસર્ગ અને પ્રત્યય છે એના વિશે આપણે આ આખા તાસની અંદર એ વિશે ચર્ચા કરવાની છે, જેથી ભવિષ્યમાં એટલે કે આવનાર દિવસોમાં જે તમે સ્કૂલે આવો ત્યારે પણ જો તમને વિડીયો જોયા હોય તો આ બાબત સમજાવવાની કોઈ જરૂર ન પડે, કારણ કે આપણી પાસે સમય ઓછો હોય. એના કારણે જે અત્યારે કરાયું હોય કદાચ એવું પણ બને કે તમે ભણવા આવો ત્યારે પાછું આના રિપીટ ન પણ થઈ શકે, કારણ કે જૂન અને જુલાઈ 2 મહિના તો ઓલરેડી વીતી ગયા છે. હવે ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર, બરાબર, 2 મહિના જેવો સમય તમારી પાસે છે. ઓક્ટોબરમાં તો કદાચ પરીક્ષા પણ હોઈ શકે. તો આપણે હવે આમાં આગળ વધીએ, વધારે ચર્ચा न करता. तो उपसर्ग किसे कहा जाता है वह भी आपको पता चल गया, प्रत्यय किसे कहा जाता है वह भी पता चल गया. जो शब्द का अंश, शब्द का ऐसा अंश जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में जो विशेषता लाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है. और शब्द का अंतिम, शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश जो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहा जाता है. तो यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचान कर लिखिए. तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इस शब्द में से आपको कुछ ऐसा उपसर्ग दिखाना है, बराबर. तो देखते हैं. पहले है उपसर्ग. तो प्रयत्न, प्रयत्न में उनका उपसर्ग बताइए. तो हमें यह पता चल गया कि प्र, ज्यादा तक प्र अ ऐसे ही उपसर्ग हो गए. तो प्र है वह क्या है? उपसर्ग. और यत्न सामान्य शब्द है. प्रयत्न तो प्र प्लस यत्न, तो उनमें उपसर्ग क्या है? तो प्र है उनका उपसर्ग. प्रलोभन तो प्र प्लस लोभन, तो उनमें उपसर्ग क्या है? तो उनमें भी उपसर्ग है प्र, बराबर. प्रभुत, अब तो आप भी लिखिए प्रभुत. प्रभुत का क्या होगा उपसर्ग? तो आप बता सकते हैं कि प्रभुत में भी प्र ही उपसर्ग है सर. तो हम यह लिख लेते हैं प्रभुत, बराबर. तो उनमें प्र है वह उपसर्ग है. निर्मल तो निर्मल, નીર નહીં લખવાનું કે ખાલી નિય નહીં લખવાનું, પણ શું આવશે? નિહ, બરાબર, પ્લસ મલ. નિહ પ્લસ મલ. તો આમાં ઉપસર્ગ શું છે? નિહ. અથવા આમ પણ લખી શકાય, જો આને આમ પણ લખી શકાય, નિસ, આમ પણ લખી શકાય, પરંતુ આપણે આમ જ લખીએ છીએ, बराबर. तो निह प्लस मल, तो निर्मल का उपसर्ग यह हुआ. अत्यल्प तो अति अल्प, जो यह इनको छुट्टा उनका विग्रह करते हैं हम संधि की तरह, तो ये इस तरह होता है अति प्लस अल्प. तो उनमें उपसर्ग क्या है? तो उनमें उपसर्ग है अति. प्रभाव तो प्र प्लस भाव, तो उपसर्ग प्र. तो यह बताया ही, हमारा सवाल ही ऐसा है कि शब्दों में से उपसर्ग पहचान कर लिखिए. तो अब हम उपसर्ग को पहचान सकते हैं. किस तरह पहचान सकते हैं? तो अब हमें पता चल गया कि शब्द के अंश में जो कुछ शब्द का ऐसा अंश जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, जो शब्द के आगे जुड़ता है. निर्धन, तो यहाँ पर भी इसी की तरह निह प्लस धन, तो क्या हुआ? निर्धन. अमृत तो अ प्लस मृत, तो उनमें उपसर्ग क्या है? तो अ है.
अतिरिक्त, तो अति प्लस रिक्त, तो अतिरिक्त में उपसर्ग क्या है? तो अति है, वह उपसर्ग है। उनके बिना भी रिक्त शब्द होता है। रिक्त यानी कि गुजराती में खाली जगह कहवाय। प्रतिदिन, तो उनमें उपसर्ग क्या है? प्रति। यहाँ पर आप कहते कि सर आपने तो कहा कि प्र शब्द ज्यादातर उपसर्ग हो गए, तो हम तो ती दिन का तो कोई अर्थ नहीं, इसलिए प्रति है। वह दिन शब्द में जुड़ने से प्रतिदिन शब्द बनता है, तो यहाँ पर उपसर्ग प्रति है। दुर्दशा, तो दूह प्लस दशा, जो જ્યાં ક્યાંય પણ આ ર અધૂરો હોય એટલે કે જે આ અડધા મીંડા જેવું હોય, બરાબર, આ ર રેફ હોય તો એનું શું કરી નાખવાનું? વિસર્ગ કરવાનું. છૂટું કરવા વખતે વિસર્ગ કરી નાખવાનું. તો અહીંયા પણ વિસર્ગ થયું, અહીંયા પણ વિસર્ગ થયું, અહીંયા પણ વિસર્ગ થયું, બરાબર. તો આ દુર્દશા છે. હવે આ છે, હજી એક વખત આ અધૂરું છે એ પૂરું કરીએ, પછી આપણે હું પાછું સમજાવું કે ઉપસર્ગ કઈ રીતે કયો. તો પ્રચુર, તો પ્ર प्लस चूर, प्र प्लस चूर, तो उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है। विजय, तो वी प्लस जय, तो उनमें उपसर्ग क्या है? तो वी इसका उपसर्ग है। परोपकार, तो पर प्लस उपकार, उपकार, तो उनमें उपसर्ग क्या है? तो पर है, उसका उपसर्ग है। तो फिर से एक बार उपसर्ग की ओर हम दृष्टि करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसे किस उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ शब्द दिया गया है प्रयत्न, तो उनमें उपसर्ग क्या है? प्र। इसी तरह यहाँ पर जो प्रलोभन शब्द दिया गया है, तो उनमें उपसर्ग क्या है? प्र। इसी तरह उसी तरह बिल्कुल इस तरह ही यहाँ पर प्रभुत दिया गया है, तो उनमें उपसर्ग क्या है? प्र। तो आपको परीक्षा में इस तरह के शब्द दिए गए हो और आपको यहाँ कहा गया हो कि उपसर्ग पहचान कर लिखिए, तो ये सिर्फ प्र नहीं लिखना, प्र प्लस यत्न लिखना और प्र के नीचे जो अंडरलाइन है ते आपणे करवानी है। निर्मल, तो निह प्लस मल, तो आमां शुं छे? उपसर्ग निह। अतिरिक्त, अत्यल्प, अत्यल्प, तो अत्यल्प है, एमां अति है ते उपसर्ग है। अति उपसर्ग छे, बराबर। अति प्लस अल्प, तो अति उनका उपसर्ग हुआ। और आगे की तरह यहाँ पर भी फिर से प्र आ गया, तो प्रभाव, तो ऐसा यहाँ पर क्या उपसर्ग मिला? प्र उपसर्ग मिला, प्र प्लस भाव। निर्धन, तो निह है, वह हमारा उपसर्ग है। हम जिस शब्द को खोजना चाहते हैं वह यहाँ मिल जाता है। निह प्र, अति निह प्र प्र प्र। और आगे भी अमृत, तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है? तो यह जो अ है वह हमारा उपसर्ग है। अतिरिक्त, अतिरिक्त, तो यहाँ उपसर्ग कौन सा है? तो अति है, वह उपसर्ग है। प्रतिदिन, तो यहाँ उपसर्ग क्या मिल जाएगा? प्रति उपसर्ग मिल जाएगा। दुर्दशा, तो यहाँ उपसर्ग क्या है? दूर, दूर है, दुह वह है, उपसर्ग है। आगे प्रचुर, तो उनमें उपसर्ग क्या है? प्र उपसर्ग है। विजय, तो उनमें उपसर्ग क्या है? वि उपसर्ग है। परोपकार, तो उसमें पर। इस तरह देखते हैं कि प्र इसका उपसर्ग, प्र इस प्रलोभन का उपसर्ग, प्र प्रभुत का उपसर्ग, नि निर्मल का उपसर्ग, अति अत्यल्प का उपसर्ग, प्र प्रभाव का उपसर्ग, निर तो निर्धन का उपसर्ग, अ तो अमृत का उपसर्ग, अति तो अतिरिक्त रिक्त का उपसर्ग, प्रति तो प्रतिदिन का उपसर्ग, दु तो दूह दुर्दशा का उपसर्ग, प्र तो प्रचुर का उपसर्ग, वि तो विजय का उपसर्ग, पर तो परोपकार का उपसर्ग। इस तरह यहाँ उपसर्ग के बारे में चर्चा की। अब हम प्रत्यय के बारे में चर्चा करते हैं, प्रत्यय के बारे में अभ्यास करते हैं। तो उपसर्ग में क्या होता है? शब्द के पहले आने वाला जो एक्स्ट्रा शब्द है उसे
ઉપસર્ગ કહા જાતા એટલે કે શબ્દનો પહેલા આવવા વાળો જે વધારાનો શબ્દ છે એને ઉપસર્ગ કહેવાય। શબ્દના પહેલા આવવા વાળો જે શબ્દનો એક વધારાનો અંશ છે એને ઉપસર્ગ કહેવાય। શબ્દ પછી આવવા વાળો જે વધારાનો શબ્દ છે એને પ્રત્યય કહેવાય। શબ્દના અંતમાં જે આવવા વાળો છે તેને પ્રત્યય કહેવાય। બરાબર। તે ગુજરાતીમાં તમારે પૂર્વ પ્રત્યય પર પ્રત્યય એવું આવતું હશે। तो હવે અહીંયા જોઈએ। बराबर। तो अब शब्द के अंत वाला शब्द देखे, शब्द के अंत में आने वाला शब्दांश देखते उसे क्या कहा जाता है। तो शब्द के अंत में आने वाला शब्दांश को हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो किया गया है सांसारिक, तो उसे उसका प्रत्यय कैसे मिलता। तो संसार प्लस इक, यहाँ क्या मिलता है इक, तो उनका प्रत्यय क्या है तो इक है। मैं कीधु ने आगाऊ के आगाऊ आवतुं होय बराबर, शब्दना पहेला आवतुं होय तो एने उपसर्ग कहेवाय, शब्दनी पछी आवतुं होय तो एने शुं कहेवाय प्रत्यय कहेवाय। तो सेवा प्लस इक, सेवा वत्ता इक, सेवा वत्ता इक बराबर शुं बन्युं तो सेवक बन्युं। तो अहींया प्रत्यय कयो छे तो इक छे। भयंकर तो भय वत्ता कर, तो मेन शब्द भय छे तो उपसर्ग कयो छे प्रत्यय कयो छे तो कर छे। प्रभावहीन तो मेन शब्द कयो बन्यो प्रभाव। जो प्रभाव होय तो एनो उपसर्ग मळी शके तो कयो उपसर्ग तो प्र उपसर्ग बने, पण अहींया तो प्रत्यय छे तो प्रभाव आ शब्द छे अने हीन छे। बराबर। तो ए शुं छे तो एनो प्रत्यय छे। बराबर। आ वात हती प्रत्ययनी। स्वर्णिम तो स्वर्ण वत्ता ईम, स्वर्ण वत्ता ईम। बराबर। तो आ अण छे एमांथी ई छूटो पड्यो तो स्वर्ण वत्ता ईम, तो ईम छे ते प्रत्यय छे। बराबर। स्वर्ण वत्ता ईम तो ई छे ते प्रत्यय छे। शीतलता तो शीतल शब्द छे शीतल, तो शीतल सामान्य शब्द छे अने ता एनो शुं छे तो ता एनो प्रत्यय छे। बराबर। तो अहींया प्रत्यय छे ते पाछळ आवे एटले हवे तमने बधाने समजाई जतुं हशे के पाछळ आववावाळो होय एने प्रत्यय कहेवाय, आगळ आववावाळो होय एने उपसर्ग कहेवाय। बराबर। आगळ तो उपसर्ग, पाछळ तो प्रत्यय, आमाय शब्द बध बेसता बने। बराबर। पाछळ आववाळाने शुं कहेवाय प्रत्यय कहेवाय, आगळ आववाळाने शुं कहेवाय उपसर्ग कहेवाय। तो हवे तमने समजाई गयुं हशे। तो थोड़ीक वार पूरतो विडियो स्टॉप करी तमारी नोटबुक में आ लखवानी ट्राय करो। 1 2 3 4 5 6 ने आ 9 शब्द छे लखवानी ट्राय करो तो पण आवड़ी जाए। तो स्टॉप करो विडियो अने पछी लखवानी चालू करो। बराबर। तो तमे जे विद्यार्थी ने भणवानी खेंच हशे ते ट्राय करशे। आपणे हवे आगळ वधीए। बराबर। तो मणिमय तो मणि प्लस मय, तो अहींया प्रत्यय कयो मळ्यो आपणने तो मय प्रत्यय मळ्यो। ए ज रीते क्षणिक तो क्षण वत्ता इक, तो अहींया कयो प्रत्यय मळ्यो तो इक प्रत्यय मळ्यो। हवे जरूरतमंद, जो अहीं बधुं जोजो जरूरतमंद तो जरूरत। बराबर। जरूरत आ शब्द छे अने आमां मंद छे ए एनो प्रत्यय छे। बराबर। तो जरूरत प्लस मंद, तो मंद एनो प्रत्यय छे। दयालु तो दया वत्ता लु, दया वत्ता लु, तो लु शब्द छे ए प्रत्यय लागेलो छे। दया शब्द छे एना भावमां लु शब्द प्रत्यय लागेलो छे। आवश्यकता तो आवश्यक, आवश्यक और ता उनमें प्रत्यय लगा, आवश्यकता। बर्फीला, ये बर्फीला देखिए उनका प्रत्यय कैसे मिलता, उनका संधि भी कैसे विग्रह होता। बर्फ, बर्फ प्लस ईला,
बर्फ प्लस इला तो बर्फीला। समृद्धि तो समृद्ध समृद्ध प्लस ई प्रत्यय लगा यहाँ पर, समृद्ध प्लस ई तो समृद्धि। विलासी तो विलास विलास प्लस ई, पर जो यहाँ दीर्घ ई है, ह्रस्व ई नहीं है, दीर्घ ई है, क्योंकि स के दीर्घ है इस तरह आने वाला। लेकिन आ जो स है एनी दीर्घ होवाना कारणे आ ई छे एवो केवो छे तो ई पण लांबो ई छे, तो विलास वत्ता ई तो ई प्रत्यय छे ते प्रत्यय तरीके लाग्यो। बराबर, विलास शब्दमां ई लाग्यो એટલે વિલાસી બન્યું। જંજાવાત એમાં પણ એમ જ છે, જંજાવાત જંજાવાત પ્લસ ई, અહીંયા પણ ई પ્રત્યય લાગે છે ને એ પણ કેવો ई તો એ પણ દીર્ઘ ई। बराबर, હવે તમને સમજાઈ ગયું હોય કે પ્રત્યય આને કહેવાય અને વિસર્ગ ઉપસર્ગ કહેવાય। तो फरी एक वखत से ते प्रत्यय तरफ एक वखत दृष्टि करिए तो संसार में एक शू लाग्यु प्रत्यय। बराबर, संसार में एक प्रत्यय लागवाथी सांसारिक बने। सेवा में एक प्रत्यय लागवाथी शू बन्यु तो सेवकला बन्यु। भयंकर में कर प्रत्यय लागवाथी शू बन्यु भयंकर बन्यु। भय में कर लागवाथी। प्रभाव में हीन शब्द हीन जोड़वाथी शू बन्यु प्रभावहीन बन्यु। तो प्रत्यय कयो छे हीन। ईम स्वर्ण में ईम प्रत्यय लागवाथी शू बन्यु स्वर्णिम बन्यु। शीतलता तो शीतल में ता प्रत्यय लागवाथी शू बन्यु तो शीतलता लाग्यु। मणि में मय प्रत्यय लागवाथी शू बन्यु तो मणिमय लाग्यु। तो अहीं प्रत्यय कयो छे तो मय। क्षण में एक प्रत्यय लागवाथी शू बन्यु तो क्षणिक बन्यु। तो अहीं प्रत्यय कयो छे एक छे। जरूरत में मंद प्रत्यय लगवाथी शू बन्यु तो जरूरत मंद। बराबर, तो मंद प्रत्यय लगवाथी जरूरतमंद बन्यु। दयालु तो दया में लू प्रत्यय लगवाथी शू बन्यु दयालु। बराबर, दया शब्द छे एमां लू प्रत्यय लगाव्यो। बराबर, आ पाछळनो जे लागेलो शब्द छे ने प्रत्यय कहेवाय। तो दया में लू प्रत्यय लगवाथी दयालु शब्द बन्यो। आवश्यक आवश्यक शब्द है एमा ता प्रत्यय जोड़वाथी कयो शब्द बन्यो आवश्यकता। बराबर, आवश्यक शब्द है एमा ता प्रत्यय जोड़वाथी आवश्यकता शब्द बन्यो। बर्फीला तो बर्फ वत्ता इला बर्फ प्लस इला। बर्फ शब्द है एमा इला शब्द जोड़वाथी इला प्रत्यय लागवाथी शू बन्यु तो बर्फीला बन्यु। पछी अहीं तमने एम ना कहेवानुं के बर्फ है ते प्रत्यय है ए नहीं, ये तो मेन शब्द है। तो इला प्रत्यय लागवाथी बर्फीला बन्यु। समृद्धि तो समृद्ध शब्द है एमां ई रसवई है। जो अहींया रसवई है ने आ दीर्घई। हवे तो आवुं तो आपणे अगाऊ जोई गया व्याकरण में। आने रसवई कहेवाय अने दीर्घई कहेवाय। बराबर, आ दीर्घई आ रसवई आ नानो आ मोटो। तो समृद्ध में रस्व ई लागवाथी शू बन्यु तो समृद्धि बन्यु। ए पण तमने खबर तो ई छे ते प्रत्यय छे। हवे आ समृद्ध में ई प्रत्यय लागवाथी ए समृद्धि बन्यु। विलास में ई प्रत्यय लागवाथी शू बन्यु तो विलास में ई प्रत्यय लागवाथी ते विलासी बन्यु। पण ए ते ई केवो छे तो ते ई दीर्घ छे। झंझावाती में ई प्रत्यय लागवाथी शू बन्यु तो ते झंझावात प्लस ई प्रत्यय लागवाथी झंझावात में ई प्रत्यय लागवाथी झंझावाती। तो अहींया मेन बात एक ही थी कि शब्द के जो शब्द का ऐसा अंश जो शब्द के पहले आकर शब्दों में शब्द की विशेषता दर्शाता है उससे उपसर्ग कहा जाता है। और शब्द का जो ऐसा अंश जो शब्द के पीछे जुड़ने से शब्द के अर्थ को बदल देता है उसकी विशेषता बताता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग है वह शब्द का परिवर्तन कर देता है और प्रत्यय है वह शब्द की विशेषता बताता है। बराबर, तो यहाँ इन दोनों का भेद भी आपके समक्ष है कि जो उपसर्ग है वह पहले आता है तो प्रत्यय वह शब्द के पीछे आता है। उपसर्ग है वह शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर देता है, उनको बदल ही देता है। और प्रत्यय है वह स्वर शब्द की विशेषता दर्शाता है। तो जो शब्द के पीछे आता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, शब्द के आगे आता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ हमारा जो एक डाउट था वह सोल्व हो गया
कि शब्दों के पहले आने वाले को उपसर्ग कहा जाता है, शब्दों के पीछे आने वाले को प्रत्यय कहा जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहा जाता है, ऐसा हमने एक अगले तास में भी देखा था, लेकिन इनमें ज़्यादा तक विद्यार्थी को यह याद नहीं रहा, या किसी को अमुक ऐसे कोई विद्यार्थी थे जिनको यह अच्छी तरह समझ में नहीं आया, इसलिए वह भूल गया। लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि आपको अब यह दोनों पॉइंट अच्छी तरह से आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे, आपको याद रह गए होंगे। शब्दों के पहले आने वाले को क्या कहते हैं, सरस, और शब्दों के पीछे आने वाले को शब्द के आने वाले को उपसर्ग और शब्द के पीछे आने वाले को प्रत्यय। तो अब आप उन्हें पहचान भी सकते होंगे। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अब अगले तास के अंदर।